Morning students. Beta, yesterday we finished exercise 2.3. How to solve the equation and how to check. है ना? Today we are going to start exercise 2.4 in which we have the statement sums. Statement sums of linear equation we have done in exercise 2.2 also. अब थोड़े level up के questions हैं. थोड़े से difficult. ठीक है? So exercise 2.4 first question. Amina thinks of a number and subtracts 5 by 2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? Look here on the board. We have to find the number. This is the easiest. So we will take, let the number is x. Let the number be x. Now we will make the equation as per they have written the statement. बोर्ड पे देखिए. Amina thinks of a number and subtract 5 by 2 from it. 5 by 2 from it. Subtract किसमें से किसको करना है? नंबर में से उसने 5 by 2 माइनस कर दिया. She subtracts 5 by 2 from a number. She multiplies the result by 8. ये जो रिजल्ट आया इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 8. जब मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट लगानी है. लास्ट बॉय इधर. जब मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट लगानी है. ठीक है? समझ आ रही है बात? सेकंड लास्ट गर्ल. This is the result after subtraction. She multiplies it with 8. जो भी इसका result है, this is now the result now she obtained is का मतलब होता है equal to. Is equal to. The result now obtained is 3 times the number she thought of. What is the number she thought of? X. So the result now obtained is 3 times the number. That is 3x. Is the equation clear? हाँ जी. Is the equation clear? Amina thinks of a number. We took the number x. She subtracted 5 by 2 from a number and then she multiplies the result by 8. Whatever the result is, it is 3 times the number. Equation समझ आ गई? अन्वे? Sure? Everyone others? Now we will solve it. 8 into x minus. अब हम 8 को उधर जाके डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि फिर फ्रैक्शन ही आएगी. 8 into x 8x minus 8 into 5 by 2 is equal to 3x. सीधा 40 भी लिख सकते हो. 8x minus 20. yes or no? कटिंग हो गई. 20 आ गया. नाउ 3x इधर पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और 20 उधर जाके पॉजिटिव. आप सीधा 20 भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो. अगर तो आपको क्लियर है तो सीधा लिखो 8x minus 3x is equal to 20. अगर थोड़ा सा डाउट आता है तो पहले 8x minus 20 minus 3x is equal to 0, फिर 0 plus 20. बट ये ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसे क्यों करना? You are in 8th class, you can directly do the transposition twice in one step. 8x minus 3x is equal to 20. ये समझ आ गई बात? 5x is equal to 20. So the number she thinks of is note down.
एनी डाउट? अलग अलग ही बैठना, इकट्ठे नहीं बैठना। व्हेन द बेंच इज वेकेंट। एनी डाउट टू एनीवन? शैल आई हैव वी नोटेड? सेकंड क्वेश्चन, a positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new number become twice the other new number. What are the number? फर्स्ट लाइन में देखो, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? A positive number is 5 times the another number, means there are two numbers. If one number is x, the other number is, what is the other number? Write down. ये क्लियर है? A positive number is 5 times the other number. अगर एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या हो गया? 5x. फिर इक्वेशन क्या कहती है? कहते हैं अगर हम दोनों में 21 ऐड कर दें, if 21 is added to both the numbers, then one of the new number become twice the other new number. ये छोटा ये बड़ा, ध्यान से सुनो पहले मेरी बात। ये छोटा ये बड़ा, अगर ये 2 है तो ये 10 हो गया, ठीक है। अगर हम दोनों में 21 ऐड करते हैं, मान लो x + 21 एंड 5x + 20, वो कहते हैं जब हम 21, who is talking? मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ, इतनी क्या इंपॉर्टेंट बात है जो आप बोल रहे हो? समथिंग इंपॉर्टेंट देन दिस? If 21 is added to this, then one number becomes twice the other number. अब देखो, हमने one number is twice the other number, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, लेकिन twice हमने किसको करना है? इसको कि इसको? x + 21 को मैंने 5, ये बराबर हो जाएंगे when 21 is बराबर नहीं, means सुनो, when 21 is added to both the number, then one of these two number is twice the other. बीच में इक्वल टू है। अगर हम बेटा, ये तो ऑलरेडी ग्रेटर था, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, फिर ये इसके इक्वल कैसे रहेगा? Suppose I take x as 10, one number x 10, other number is 50. When 21 is added to this, 10 + 21 and 50 + 21. Then when 21 is added to the out of, when 21 is added to both the number, then one number is twice the other. One number is twice the other is मतलब equal to. तो अगर मैं इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये तो बेचारा 31 नहीं रहा, ये बन गया 71 × 2 142, तो और बड़ा हो गया, इक्वल तो नहीं हुआ। इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें छोटे नंबर को ट्वाइस करना पड़ेगा। समझ आई बात? तभी इक्वल लिख सकते हैं ना, आगे समझ? ठीक है, मतलब ये हुआ हमारा 31 को 2 से करेंगे 62 इज इक्वल टू, अब तो ये तो मैंने जनरल एग्जांपल लिया ना, जब अगर हम बड़े नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो छोटे के इक्वल तो नहीं ना हो सकता, तो डबल किसका करना है? छोटे का। सो वैसे तो ये सीधा भी आप लिख सकते हो, when 21 is added, then one number is x + 21, other number is 5x + 21. According to question,
सॉल्व करके मैं फिर मैं आपको आंसर के साथ समझाती हूँ। ये नोट कर लो, फिर आपको समझाती हूँ एग्जाम आंसर के साथ एग्जाम्पल। फेयर में क्यों नहीं करते, सीधा रफ में कर रहे हो, फिर फेयर में करोगे इवन क्वेश्चन। अच्छा हाँ, वो 9th वाले करते हैं सीधा। ऑन मंडे आई विल कलेक्ट द नोटबुक्स, ठीक है। नाउ सी हियर, अब हमारा आंसर क्या है, जैसे 1 नंबर 7, इधर देखो, एक नंबर 7 है, दूसरा नंबर है 35। अगर हम 21 दोनों में ऐड करते हैं, 7 + 21, 35 + 21, ये क्या हुआ 28, ये क्या हुआ 56। हमने इसको इक्वल करना है। अगर मैं 5x वाला, ये 5x वाला नंबर है ना ये, अगर मैं इसी को डबल कर दूंगी तो 56 का डबल तो 112 हो जाएगा। 112 इज नॉट इक्वल टू 28। So in order to make the two things equal, I have to double which number? Smaller one. 28 into 2 56. 56 is equal to 56. यहाँ पर देखो ये x है, दोनों में 21 ऐड किया है। I have 100 rupees, you have 500 rupees. दोनों में 21 ऐड किया है, सेम अमाउंट ऐड किया है, तब भी मेरे पास कम और आपके पास ज्यादा। So x plus 21 is obviously smaller than 5x plus 21. So in order to make these two things equal, which number will be doubled? X plus 21, not 5x plus 21. Answer भी नहीं आएगा उससे. Is my point clear to you? Noted? कौन बातें कर रहा है? कौन बातें कर रहा है? Continuously. ये ठीक है, बोल रहा था तू पहले। अच्छा ठीक है बेटा, आई एम सॉरी। कौन बोल रहा है फिर बता दो। अनबे, ये मास्क तो अच्छा है, पता ही नहीं चलता है ना। क्यों बोल रहे हो बेटा, मत बोलो। हाँ बोला तो वो गैरी है, इनका काम है। अच्छा बोलो मत साथ साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास बॉय मनन, लॉस्ट ही है तू, नींद आ रही है। Sum of the digit of a 2-digit number is 9. When we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? ये नंबर्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें आपने अगर 7th में किया है या 8th में ही पहले टर्म में नंबर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो हमेशा हम नंबर्स को एज्यूम करके लिखते हैं, ओरिजिनल नंबर, रिवर्स नंबर, किए ऐसे क्वेश्चन नंबर्स को अज्यूम करते हैं। डिजिट्स वाले जब क्वेश्चन आते हैं फिर ओरिजिनल नंबर लिखते हैं, रिवर्स नंबर लिखते हैं, नहीं किए। ओके, जब भी ऐसे डिजिट्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमने नंबर्स अज्यूम करने होते हैं। देखो कैसे करेंगे, बता रही, ध्यान से समझना है क्वेश्चन। फर्स्ट लाइन, sum of the digit of a 2-digit number is 9. Can anyone tell me what does this line means? Raise your hand. जैसे तो इसने बोला 2-digit नंबर कोई भी, जैसे 54,
5 + 4 9, 45, 4 + 5 9, 18, 1 + 8 9, ऐसे 27। क्वेश्चन में कहते देयर इज अ 2 डिजिट नंबर whose sum is 9, बट ऐसे कोई भी नहीं लेना, आगे वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसको वो डिजिट सेटिस्फाई करे उस कंडीशन को। 2 डिजिट नंबर में एक डिजिट होता है टेंस प्लेस पे, एक डिजिट होता है वंस प्लेस पे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में बेटा हम यूनिट्स प्लेस पे मींस वंस प्लेस वाला डिजिट लिखते हैं, फिर टेंस प्लेस वाला। स्टॉप राइटिंग, जस्ट अंडरस्टैंड। किया था ना 7th में एक बार, पता नहीं कौन सा चैप्टर होगा, चलो वैसे याद तो क्या ही रहा होगा तुम्हें ऑनलाइन में। लेट द, अगर एक ही सम किया ना फिर बेटा वो याद नहीं रहता, खूब सारे किए हो ना फिर वो याद रहते हैं। लेट द डिजिट at one's place is x. Digit at, इधर देखो, मान लो मेरे पास डिजिट है एक्स वाई, सपोज 27, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस। अगर वंस प्लेस पे मैं 7 लेती हूँ, टेंस प्लेस पे कितना आया? सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, जैसे 2 + 7 9। अगर वंस प्लेस पे 7 है, टेंस प्लेस पे कितना आएगा? ये 2 कैसे आया? अच्छा, जो दोनों का सम है उसमें से वंस प्लेस वाले डिजिट को क्या कर दिया? माइनस। जैसे मान लो, अगेन आई विल टेक अनदर एग्जांपल, सपोज देयर इज अ 2 डिजिट नंबर whose sum is 9, आई टेक एग्जांपल 18। इफ वंस प्लेस पे बेटा अगर 8 है तो टेंस प्लेस पे क्या आएगा? वो कैसे आया? जो दोनों का सम है उसमें से वंस प्लेस वाले नंबर को हमने क्या किया? माइनस। यस और नो? 9 - 8 1, 9 - 7 2। इसी तरह से अगर हमने वंस प्लेस पे x ले लिया है तो टेंस प्लेस पे क्या आएगा? क्या आएगा? 9 - x। x - 9 नहीं, x - 9 करोगे तो वहीं पे सर्कल लगेगा एंड फुल क्रॉस टू द क्वेश्चन। दोबारा समझाऊं why 9 - x? देखना, मान ले दो कोई 2 डिजिट नंबर है जिसका सम है सपोज 9 ही लेते हैं हम। मैं ये एग्जांपल ले लेती हूँ 54। 5 + 4 9 है ना। देयर इज अ 2 डिजिट नंबर whose sum is 9। अगर वंस प्लेस पे 4 है तो ये 5 कैसे आया? 9 - 4, 4 क्या है? जो डिजिट वंस प्लेस पे है। यहाँ पर वंस प्लेस पे क्या है? तो टेंस प्लेस वाला नंबर कैसे आएगा? जो सम है 9 माइनस द डिजिट एट वंस प्लेस, दैट इज 9 - 4। तो इसका मतलब यहाँ पर वंस प्लेस पे क्या है? x, तो टेंस प्लेस वाली डिजिट क्या आएगी? 9 - x। ये क्लियर है? लिखो इतना। हमेशा इन क्वेश्चंस में इसके बाद हम लिखते हैं ओरिजिनल नंबर, फिर रिवर्स नंबर। ओरिजिनल नंबर का मतलब होता है जो नंबर जिस प्लेस पे है उसको उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना। जैसे x किस प्लेस पे है? वंस, तो x को किससे मल्टीप्लाई करना? 1 से। और 9 - x किससे, किस प्लेस पे है? 10 से। और उसको किससे मल्टीप्लाई करना? 10 से। और फिर दोनों को ऐड करना। जैसे इसके बाद हम लिखते हैं ओरिजिनल नंबर इज x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9 - x multiply by 10. This is the only method to do these sums. There is no other method. अगर आप सोचो कि ये मुश्किल है, तो इसको करने का कोई और तरीका है, कोई और तरीका नहीं है।
दिस इज द ओनली मेथड टू डू दिस टाइप ऑफ सम्स, डिजिट्स वाले सम्स जो आते हैं। समझ आ गई? हाँ जी, नया मेथड है तो पहले कर लो, ये इससे कोई फर्क नहीं। 9 माइनस एक्स इंटू 10, ये एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, so you can write any term first। ऐसे कर लेते हैं अगर आपको क्लैरिटी है। जो नंबर जिस प्लेस पे है, 9 माइनस एक्स 10 पे है तो 9 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स 1 प्लेस पे है तो एक्स इंटू 1। इज दिस क्लियर? इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 टेंस आर 90 माइनस 10x प्लस एक्स इंटू 1, 10x minus x, this is negative, this is positive, 10x minus x is 9x, but with negative number sign. So this is our original number। यहां तक किसी को कुछ नहीं समझ आया? नहीं समझ आया तो बेटा पूछना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है, पहले समझ लो फिर लिख लेना। हाँ, कहां से आया? टेंस प्लेस पे, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, वंस प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे 9 माइनस एक्स है, ये अपनी प्लेस से मल्टीप्लाई हो गया, ये अपनी प्लेस 10 से मल्टीप्लाई हो गया, वहां से आया है ये 10, ठीक है। रिवर्स मतलब उल्टा। अगर 45 है, 45 का उल्टा रिवर्स मतलब जो नंबर पहले 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो 10 से होगा, जो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 से। मतलब रिवर्स में हम क्या लिखेंगे? 9 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 10। 9 minus x into 1 is 9 minus x only plus 10x। ये क्या आएगा? 9, 10x minus x is 9x। Now 10x is positive, so it will be positive। This is the reverse number। अब इन पे इक्वेशन बनानी है, ये नोट करो, अगर नहीं समझ आया तो। Any doubt you can ask, I will confidently that will explain clear हो जाएगा। और अगर डाउट पूछोगे नहीं तो क्या ये बेटा जो चेकिंग वाले क्वेश्चन आप करते हो, जैसे इधर देखिए किसने किया है, बोर्ड पे देखो 2y + 5y3 ये जो देखो, आपकी जो भी वैल्यू आप इस पर सॉल्व करती है ना, चेकिंग के लिए आपने इस स्टेप में ही y को डालना, जो गिवन इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड और उसके राइट हैंड साइड में y को करना है, नॉट इन द सॉल्यूशन वाले स्टेप।
आज मेरी पहले हम सॉल्व करते हुए जो हमारा पहला स्टेप है इसमें आपने y की वैल्यू निकाली, जो आपका क्वेश्चन आया था उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे y और उसकी राइट हैंड साइड पे y निकाल कर राइट साइड, ठीक है? ओके, अब ये हमारा था ओरिजिनल नंबर, ये हमारा रिवर्स नंबर। अब हमने उस पे बनानी है इक्वेशन। डिजिट्स कर लिए, 1 डिजिट 10 डिजिट, जिसको बातें करनी है ना उसको लेके बाहर निकल जा पुलकित। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, now let us make the equation. Sum of the two digit number is 9, then we interchange the digit, it is found that the resulting new number, interchange the digit मतलब ये reverse number, the resulting new number is greater than the original by 27, मतलब जो interchange मतलब reverse number, according to question जो reverse number है वो original number से बड़ा है कितना, 20। I am having money greater than you by 27। इसका मतलब मेरी मनी में से आपकी मनी को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 27। यस और नो? अब इक्वेशन पे आ जाओ, द रिवर्स नंबर। अब ऐसे क्वेश्चन में आप कहोगे मैडम इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब यही रिवर्स नंबर लेना। डिजिट्स वाले क्वेश्चन में पहले डिजिट्स, फिर ओरिजिनल नंबर, फिर रिवर्स नंबर, फिर इन ओरिजिनल और रिवर्स पे इक्वेशन बनानी है। सो क्वेश्चन इज आफ्टर when we interchange the digit, it is found that the resulting new number means reverse number is greater than the original number by 27। रिजल्टिंग नंबर मतलब रिवर्स नंबर में से ओरिजिनल नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 27। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 + 9x - 90 माइनस माइनस प्लस 9x इज इक्वल टू 27। 18x - 81 इस पे जाएगा, गलत है कुछ? गलत है। 108/18 कटिंग करो, 2 5 4 6 x 6 आ गया। Therefore digit at one's place is 6। दोबारा समझो फटाफट से बेटा, देन बेल विल गो। ये क्वेश्चन समझ आ गई, कैलकुलेशन समझ आ गई, यस और नो? जो आपकी x की वैल्यू आई दैट वाज द डिजिट एट वंस प्लेस 6। फाइन हमने अज्यूम किया होता है स्टार्टिंग में वो निकालना होता है। टेंस प्लेस पे क्या था, 9 - x, 9 - 6 3, तो वंस प्लेस पे हो गया 6, टेंस प्लेस पे हो गया 3, तो ओरिजिनल नंबर 36, रिवर्स नंबर 62। And this is an important question for 5 marks and maximum time it comes in the exam। तो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, वो करेंगे, कल करेंगे। All the 3 questions homework। Any doubt? अनवे पूछना कुछ?
अरे वंस प्लेस, पहले वंस प्लेस होता है फिर टेंस प्लेस होता है। वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? 6, तो 6 यहाँ 3। एनी डाउट? अभी भी डाउट है? ओरिजिनल लिख दिया, रिवर्स उसका उल्टा लिख दे। नहीं समझ आई? कल करेंगे ना बेटा ऐसा क्वेश्चन, और फिर तब रिवाइज करना, फिर समझ आ जाएगा। कौन सा स्टेप नहीं समझ आया बेटा? ये देखना, पहले ये 9 माइनस एक्स 10 से मल्टीप्लाई हुआ था और x 1 से, रिवर्स में 9 माइनस एक्स 1 से होगा और x 10 से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, विल कंटिन्यू टुमारो, टेक केयर।